Hi everyone, I'm Shraddha Anej and I'm talking from Divine Institute. I am here to address your concern with regards to AIBE. As we all know that there are many students who are very stressed as to how do they prepare, how should they proceed with regards to preparation for their AIBE, which is scheduled on 24th of November. So I will provide you a little overview and little help with regards to the manner and the basically what all you should cover and how you should cover. So हमारे लिए the subject that I'm going to cater with today is going to be Indian Evidence Act. I will show you a difference. As we all know that there has been a change, a new law has been brought. Instead of Indian Evidence Act, we currently have BSA, which is Bharatiya Sakshya Adhiniyam in picture. So we'll firstly see the marks that are allotted to this subject, and then we'll move ahead with the same. So as you can see on the board, syllabus for AIB, the marks, the number of questions that are going to be asked from Evidence Act and Bharatiya Sakshya Adhiniyam are going to be 8 questions, right? So 8 questions from these 2 subjects, right? 2 subjects, why do I say 2? It's just one only, but obviously the old act and the new act both are going to be asked. So it is definitely going to be a little tricky, a little tough for you. In order to answer the questions, you will have to have command on both the subjects, on the old law also and the new one also. ठीक है, सो इसीलिए हमारा जो आज का लेक्चर रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी एन overview lecture of the old law and the new law and how you should proceed and understand the basic differences between both of these laws. Okay. So हम जानते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो था, इट वाज अ वेरी ओल्ड लॉ. इंडियन एविडेंस एक्ट वाज एक्ट ऑफ 1872. In the year of Indian Contract Act, it came into being by Sir Henry Maine. So obviously it was made in consonance with what were the requirements of that time, and Britishers के time का law है, so it required a lot of amendments. It was seeking all the amendments, but हम लोग कर नहीं पा रहे थे. कितनी amendments कर लेते? So that is why a new law, we know BSA 2023 was brought into picture, and which was finally which is applicable on all of us since 1st of July 2024. तो पुराने वाला लॉ जो था उसके हिसाब से अगर मैं बाइफर्केशन करूं तो आइड से कि यार हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के हिसाब से हमारे पास इसकी स्कीम ऑफ द एक्ट जो थी, इट हैड 3 पार्ट्स, it had 11 chapters and 167 sections. It had 3 parts, 11 chapters and 167 sections. And now when it comes to BSA 2023, now the scheme of this act, we have 4 parts, 12 chapters and 170 sections. So this is the basic difference. I think the least amount of differences are there, if there are in any law out of BNS, BNSS and BSA. I would say it is BSA. Indian Evidence Act में सबसे कम changes लाए गए हैं. ठीक है? It did not bring there has not been any such massive change जिसके कारण आपको ऐसा लगे कि यार this seems alien to me, या ये अपन जान लगने लग गया. ऐसा बिल्कुल नहीं है. They are similar. थोड़े minute differences are there, which obviously we'll learn in due course of time. ठीक है, तो आप देखिए स्कीम के हिसाब से 3 parts, 11 chapters, 167 section, 4 parts, 12 chapters and 170 sections. ठीक है, सबसे पहला हमारे पास जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसमें ना जो पूरा पहला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, वो सीधा बात करता था रेलिवेंसी की, और यहां पे फर्स्ट पार्ट बात करता है प्रिलिमिनरी. और इसमें इन्होंने फर्स्ट पार्ट को एक सेक्शन अलॉट कर दिया, विच इज
सॉरी चैप्टर लॉट कर दिया विच इज चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सीधा सीधा रेलिवेंसी का था, इस टाइम पे फर्स्ट पार्ट सीधा सीधा प्रिलिमिनरी का है। ठीक है, अब इसका जो सेकेंड पार्ट है, नाउ दैट पार्ट इज अबाउट रेलिवेंसी। तो आप देखो सीधा सीधा फर्क कहां से पड़ गया, फर्स्ट पार्ट ही रेलिवेंसी, यहाँ पे सेकंड पार्ट रेलिवेंसी है, यहाँ पे तभी 3 पार्ट्स है, यहाँ पे 4 है, इतना सा फर्क है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या करा, सेक्शन नंबर 1 एंड 2 जो बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की एंड डेफिनेशन क्लॉज की, इसको दे दिया चैप्टर 1 और पार्ट 1 अलग से बना दिया उसका। यहाँ पे ऐसा बाइफर्केशन था ही नहीं, सब कुछ रेलिवेंसी के अंदर ही आई जा रहा था। ठीक है, उसके बाद साथ में बात आई 11 चैप्टर्स की, तो एक चैप्टर यहाँ पे बढ़ गया ना, पहले 11 क्यों थे और उसमें अब 12 क्यों हैं, पहले वाले जो 11 चैप्टर्स है उनके अंदर एक चैप्टर ऐड हो गया, ये वाला प्रिलिमिनरी वाला अलग से। सिमिलर ओनली, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस, कि फर्क ही नहीं आया कुछ खास। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट बात करता था ऑन प्रूफ की, इसका थर्ड पार्ट सेम बात करता है ऑन प्रूफ। ठीक है, ओके, तो आप देखो तीसरा पार्ट भी सेम हो गया। उसके बाद आ गया हमारा यहां का तीसरा पार्ट, और जो बनेगा यहां का फोर्थ पार्ट, एक एक शिफ्ट हो गया सिर्फ एक प्रिलिमिनरी ऐड होने के कारण। प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, ये पहले पार्ट 3 था और अब बन गया है पार्ट 4 बीएसए का। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्ट फॉर्मेशन ऑफ बोथ द एक्ट्स। ठीक है, हमारे पास बीएसए में नए वाले एक्ट में सेकेंड पार्ट जो रेलिवेंसी का है, उसके अंदर आपके पास, तो आप देखिए ये जो हमारा रेलिवेंसी वाला पार्ट 2 है, उसमें आपका एक चैप्टर आ रहा है चैप्टर 2। थर्ड पार्ट जो है आपका ऑन प्रूफ, इसमें आ रहे हैं चैप्टर 3 से लेके 6 तक 4 चैप्टर्स, 3, 4, 5 एंड 6, एंड लास्ट जो आपका चैप्टर पार्ट 4 है उसमें आ रहे हैं चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 12 तक, लास्ट वाले सारे चैप्टर्स यहां कवर हो रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द बाइफर्केशन ऑफ BSA. I will reduce the size for you all so that you can actually compare. Yes, now I hope you are able to see everything on one page, right? Okay, perfect. ठीक है, तो पुराने वाला जो BNS, पुराने वाला जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसमें बाइफर्केशन ऑब्वियसली चैप्टराइजेशन का थोड़ा सा फर्क तो पड़ा ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे पार्ट्स एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो बाइफर्केशन ऑफ चैप्टर्स भी उससे अकॉर्डिंग हो गई। पुराने वाले पार्ट में पार्ट 1 जो था रेलिवेंसी, उसमें हमारे पास एक ही चैप्टर था प्रिलिमिनरी का और दूसरा चैप्टर था रेलिवेंसी का। चैप्टर 1 एंड 2, दिस इज फर्स्ट पार्ट। जो हमारे पास सेकेंड पार्ट है पुराने वाले इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमारे पास जो चैप्टराइजेशन थी, इट स्टार्टेड फ्रॉम चैप्टर 3 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक, 3 to 6 ये था सेकेंड पार्ट में। एंड थर्ड पार्ट में था हमारे पास चैप्टर नंबर 7 से लेके चैप्टर नंबर 11 तक, यहां पे बैठा है थर्ड पार्ट में। लेट अस जस्ट क्विकली रिवाइज। आप देखो स्कीम ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंग पहले 3 पार्ट थे, 11 चैप्टर्स थे 167 एविडेंस एक्ट में। ठीक है, जो 3 पार्ट थे वो कौन कौन से थे, पहला रेलिवेंसी, दूसरा ऑन प्रूफ और तीसरा प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। ठीक है,
इसमें जो पहला पार्ट था उसमें 2 चैप्टर्स थे, प्रिलिमिनरी एंड रेलिवेंसी। दूसरा पार्ट था उसमें चैप्टर 3 to 6 थे, और जो तीसरा पार्ट था उसमें 7 to 11। यहां पे 4 पार्ट्स हैं बीएसए में, 12 चैप्टर्स एंड 170 सेक्शंस है। फर्स्ट पार्ट प्रिलिमिनरी है, चैप्टर 1 है। सेकेंड पार्ट रेलिवेंसी है, चैप्टर 2 है। थर्ड पार्ट ऑन प्रूफ 3 to 6 एंड फोर्थ पार्ट सेम प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, चैप्टर नंबर 7, सेक्शन चैप्टर नंबर 12 आ गया। ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी चीजें कवर हो जाती हैं इनमें? जो हमारा रेलिवेंसी चैप्टर है उसमें आपके क्या क्या चीजें रेलिवेंट होंगी? आपका कॉन्डक्ट कब रेलिवेंट होगा, आपका मोटिव था क्या, आपके पास कोई इंटेंशन थी क्या, आप फ्रॉडुलेंटली एक्ट करे थे, आप गुड फेथ थी क्या, ठीक है, आप कोई कस्टम्स है क्या, एडमिशन है, कन्फेशन है, एक डाइंग डिक्लेरेशन किस हद तक रेलिवेंट है, क्या रेलिवेंसी रहेगी, अप्रूवर की बात सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप मानिए पुलिस के सामने बोली गई बात का क्या किया जाए। ठीक है, आपसे कोई रिकवरी हो गई, पुलिस ने रिकवरी कर ली आपकी बात सुन के, उस कन्फेशन का क्या किया जाए। ठीक है, उसके बाद ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट किस हद तक रेलिवेंट है। ठीक है, आपने कोई ऑब्वियसली कोई एक्सपर्ट लेकर आए, उसने कोई बात कही, जजमेंट आ चुकी है पुरानी उस चीज पे, उसकी क्या रेलिवेंसी है। ये सारी चीजें केटर करता है हमारा फर्स्ट पार्ट विच टॉक्स अबाउट रेलिवेंसी। यहाँ पे भी, और ये वाला जो रेलिवेंसी पार्ट है यहाँ पे भी सेम चीजों को केटर करता है एकदम। सेकेंड पार्ट आता है ऑन प्रूफ, चैप्टर नंबर 3 to 6। चैप्टर नंबर 3 to 6 में ना जो चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, वो बात करता है, इधर वाला चैप्टर 3 है ये, और इधर वाला भी चैप्टर 3 है ये। देखो आप, इधर वाला चैप्टर 3 एविडेंस एक्ट का इज इक्वल्स टू चैप्टर 3 ऑफ बीएसए। आई रिपीट, चैप्टर 3 एविडेंस एक्ट इज इक्वल्स टू चैप्टर 3 बीएसए। हाउ? क्योंकि दोनों एक ही टॉपिक पे डील कर रहे हैं, जुडिशियल नोटिस। किस किस चीज का जुडिशियल नोटिस लिया जा सकता है, किस किस चीज को कोट करेगा, मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, संडे के बाद मंडे आता है, एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 3 तो हो जाएगा आपका जुडिशियल नोटिस वाला। चैप्टर 4 हो जाएगा, चैप्टर 4 बात करेगा ओरल एविडेंसेस की। ठीक है, चैप्टर 5 बात करेगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की, और चैप्टर 6 बात करेगा डॉक्यूमेंट्री और ओरल में से कौन महान है ना। सेम बात यहां पे, चैप्टर 3 है, मैंने आपको भी बताया, जुडिशियल नोटिस। चैप्टर 4 बात करेगा विद रिगार्ड्स टू ओरल एविडेंसेस, चैप्टर 5 बात करेगा डॉक्यूमेंट्री की, और 6 बात करेगा दोनों में लड़ाई होगी तो क्या। ठीक है, ओके। उसके बाद आपके पास लास्ट आ जाता है यहाँ पे पार्ट 3, जिसमें चैप्टर नंबर 7 टू चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर 7 बर्डन ऑफ प्रूफ, वी नो। चैप्टर 8 एस्टॉपल, वी नो। ठीक है, एस्टॉपल वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 9 ऑफ विटनेसेस, कौन कौन विटनेस बन सकता है, ठीक है, कैसे तरह के विटनेसेस होते हैं, ये सारी बातें, कितने विटनेस चाहिए, ठीक है, और प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस क्या होती हैं, कौन कौन सी बातें प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के अंदर आ जाती हैं, एटसेट्रा। ये सारा कुछ कवर हो जाता है आपका चैप्टर नंबर 9 में। उसके बाद आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 10 which talks about the examination of witnesses. We talk about cross examination, we talk about re-examination, we talk about examination in chief, we talk about what are leading questions, how can a witness be cross examined, how can, what is the process of corroboration and contradiction of the statements of witnesses, etc. Everything is being catered with in chapter number 10 here. ठीक है, and the last chapter was chapter number 11 of improper admission and rejection of evidence, जो कि हमारे पास पुराने वाले एक्ट में it was not of much avail of course. ठीक है, तो हम जानते थे of improper evidence and rejection of witnesses के, rejection of evidence के केस में क्या हो जाएगा, वो चैप्टर 11 था। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं तो सेम है बिल्कुल। देखो आप, सेक्शन 7 से लेके सिर्फ एक 12 ही एक्स्ट्रा है। ठीक है, 7 बर्डन ऑफ प्रूफ, 8 आप बताओगे ना सब एस्टॉपल, 9 क्या था बताओ, 9 डायरेक्टली बात करता है विटनेसेस की, राइट, 9 डायरेक्टली बात करता है विटनेसेस की, 10 बात करता है उनकी एग्जामिनेशन की, 11 बात करता है इम्प्रॉपर एविडेंसेस की, और 12 यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो चैप्टर ऐड हुआ है उसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 170 रिपील एंड सेविंग्स। तो एक जो चैप्टर ऐड हुआ है 12वां, दैट इज टॉकिंग अबाउट रिपील एंड सेविंग्स, सिर्फ वही एक्स्ट्रा, बाकी सेम है, सब कुछ सेम। तो इसमें आपको सबसे कम मेहनत लगेगी कंपैरिजन ड्रॉ करने में, क्योंकि इट इज वेरी वेरी सिमिलर। ठीक है,
अब फर्क क्या आया, मेरे मन में सवाल आया, क्या क्या डिलीट करा गया? तो डिलीट क्या क्या करा गया? फॉर एग्जाम्पल थिंग्स लाइक, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम जानते हैं ज्यूरी सिस्टम ऑफ इंडिया में प्रिवेल नहीं करता, तो हमने ज्यूरी सिस्टम वाला जो सेक्शन था ज्यूरी वाला उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, हमने बहुत सारे सेक्शंस विद रिगार्ड टू सेसेशन ऑफ टेरिटरी, सेक्शन 113 था एविडेंस एक्ट में, उसको डिलीट कर दिया। हमारे पास डॉक्यूमेंट की एविडेंस थी, डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन थी उसको हमने एक्सपैंड कर दिया। जहां जहां पे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को इंट्रोड्यूस करना था वहां पे हम राइट जगह पे हम करते गए। ठीक है, और भी जो ब्रिटिश रूल्स को लेके चीजें थी वो हमने सारी डिलीट कर दी। इंडिया के डेफिनेशन हमने डिलीट कर दी बीएसए में से। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें लगा दीज आर ऑफ नो अवेल नाउ। वाई? बिकॉज हमें ऐसा लगा कि यार ये सब ब्रिटिशर्स ने बनाई थी और इनकी अब हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इंडियन लॉज आ गए हैं, तो दैट इज व्हाई वी डिलीटेड ऑल ऑफ देम। ठीक है, they were inconsistent with what we wanted to create, they were basically redundant। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। हमने ये चीज तो देख ली, बट अब पॉइंट आता है इतनी सब चीजें याद कैसे रखी जाएं, हाउ टू अटेम्प्ट AIBE का एग्जाम। सो आई फर्मली बिलीव दैट हम लोग लॉ स्टूडेंट्स होने के नाते वी आर वेरी व्हाट डू यू कॉल कॉन्फिडेंट अबाउट द फैक्ट कि हम लोग पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। आई हैव दिस फर्म बिलीव, I do not even doubt that. But along those lines, we know last time the results were little heartbreaking also, right? For many, as we know that many students were not able to clear AIBE. ठीक है, जिसके कारण there has been a lot of what do you call it, scariness created around it, and people are afraid, people are anxious. I've seen anxiety among students with regards to AIBE. So there has to be a pattern. Everything has to be followed in a certain manner in order to understand, in order to basically crack the exam in the first go, which you obviously should and would, of course. So आपको करना क्या है? ऐसे आपको पूरे कोर्स के दौरान we will give you the entire scheme, all the sections, कौन कौन सा सेक्शन कौन से चैप्टर में छुपा है, we'll see all of that. और उसके साथ साथ नॉट जस्ट दैट, वी विल ऑल्सो सी कि यार हमने कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि पेपर में जाके कि कौन सा पेपर में कौन सा क्वेश्चन कौन से सेक्शन से आया है। ठीक है, बिकॉज भी हमारे पास बैरैक्स होंगे पेपर में, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम उन पूरे बैरैक्स के एक एक पेज को ढूंढ पाए। ठीक है, एक एक पेज को छांट पाए। तो बेस्ट क्या रहेगा उस टाइम पे? उस टाइम पे बेस्ट ये रहेगा कि आपको पता हो एटलीस्ट ब्रैकेट कौन सा है, पोर्शन कौन सा है कि जहां से क्वेश्चन आया है। तो अगर आप वो पोर्शन को इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। तो हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है बैरैक्ट रीडिंग के लिए। ठीक है, कि यार ओके, इफ आई सी अ सर्टेन क्वेश्चन, तो मेरा दिमाग कैसे चलना चाहिए कि मैं कौन से बैरैक का, कौन से पार्ट का, कौन सा चैप्टर का, कौन सा सेक्शन में जाऊं। अगर सेक्शन एग्जैक्टली नहीं भी याद आ रहा तो एटलीस्ट पार्ट चैप्टर तो नजर आए कि यार ये वाले चैप्टर में पक्का है इसका जवाब, बस मैं उन वो वाले प्रोविजंस को देखूंगा। तो इस चीज को समझिए पहले आप कि यार इट इज not a hard nut to crack, but a strategy is required. And that strategy is careful Barak reading, which obviously we can help you master it. We can help you with understanding the depth which is there in this paper, right? And why people are so scared about it. Okay. So I think also one more piece of information which you all are, I hope you are very well aware of the fact that the barracks that you can take in are the one that are available in the market without comments. और आप उन्हें अभी लेके रख लीजिए because there is going to be a rush in the market जिसके कारण वो market में available ही नहीं होंगे. So I request you कि आप वो वाले barracks को अभी लेके रख लीजिए. Thank you everybody. Take care of yourself. And I just want you all to relax, and you will be able to clear the exam and you with flying colors. Thank you very much.